Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 1 of Unit 5 of Iqra Applied Grammar Book 3. So dear students, before starting the proceedings of the lesson number 1 of Unit 5, I just want you to give you the feedback of the homework of the Unit number 4 of Learn to Write segment. जो Learn to Write segment का हमारा होमवर्क था यूनिट नंबर 4 जो कि प्रपोजिशन था, उसका फीडबैक आपको दिया जा रहा है। चूंकि अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही थी लर्न टू राइट सेगमेंट को कंप्लीट करने में ऑन योर नोटबुक, तो आप उसको यहाँ से देखकर हेल्प लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें हमारे 2 टास्क थे। टास्क ए था राइट अबाउट द थिंग्स दैट यू डिड लास्ट वीक यूजिंग प्रपोजिशन ऑफ टाइम। आपने उसको प्रपोजिशन ऑफ टाइम को यूज करते हुए सेंटेंसेस को लिखना था। तो आप जब उसको लिखेंगे, ये कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले आप हेडर देंगे जैसे मैंने दिया हुआ थिंग्स आई डिड लास्ट वीक। उसके बाद फिर आप 8 सेंटेंसेस को लिखेंगे जैसे मैंने लिखे हैं व्हाइल यूजिंग प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो ये मॉडल आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, आपके असिस्टेंस के लिए मौजूद है। सेकंड टास्क बी था, उसमें क्या था, यू हैव टू राइट अबाउट योर स्कूल बिल्डिंग व्हाइल यूजिंग प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। आपने अपनी स्कूल बिल्डिंग के बारे में सेंटेंसेस लिखने थे व्हाइल यूजिंग प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये मॉडल भी आपके लिए कर दिया गया है। सबसे पहले आप हेडर देंगे माय स्कूल बिल्डिंग और उसके बाद आप 8 सेंटेंसेस को लिखेंगे व्हाइल यूजिंग डिफरेंट प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस जैसे मैंने अपने मॉडल में किया है। सो डियर स्टूडेंट, दिस मॉडल इज फॉर योर असिस्टेंस, नॉट फॉर यू टू कॉपी इट। आप सिर्फ इससे असिस्टेंस लेंगे, हेल्प लेंगे और अपने सेंटेंसेस को जनरेट करेंगे और अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, unit number 5 is about relative pronouns and where, and in this unit we'll learn how to use relative pronouns and where in our sentences, and we'll talk about it later inshallah taala. First we'll start the proceedings of the lesson with the first segment of this unit, which is grammar in use. Read aloud together. As you clearly see that in this segment we have a passage to read out. First I'll do the model reading for you and then you'll read after me. So without wasting even a single second, let's start the reading of this passage. The village where I was born has changed greatly over the last 20 years. Now there are many modern shops in the place where my school used to be. All the children who went there have grown up and moved away. The local union council office, which was built several years ago, used to be community house where people gathered together. The football ground, which was my favorite place as a child, is now a public park. Some things are still the same though. Mrs. Habib's, who is now 60 years old, still works at her small tea shop. So dear students, now it's your turn to read out this passage. You will pause the video and do the reading, and after that inshallah ta'ala we'll proceed further with the next segment of this unit. Dear students, I hope that you have read this passage effectively. Now it's time to move on to the next segment, which is learn grammar. And in this segment we have a table in which we have sentences to drill. But before going to the drill, I just want you to look at the strip which is about the relative pronoun. And if you look at the strip, you can clearly read that who, which, that and where are used after a noun to give more information about people, things, animal or places. यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, विच, दैट और उसके साथ वेयर, दे आर यूज फॉर अ नाउन और आफ्टर अ नाउन टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। वो फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट पीपल, थिंग्स, एनिमल और प्लेसेस। चूंकि नाउन बेसिकली अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये जो यूज होते हैं, दे आर यूज बेसिकली टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट particular noun, or that noun may be a person, thing, animal or place. यानी ये additional information देंगे in the sentence regarding that particular noun. So dear students, it's time to just look at the table. So dear students, I just want you to look at this table first.
before moving to the actual table of the book, as you can see that in this table we have 3 columns. One is about the relative pronouns with where, and second is about their usage. वो उनके यूजेज के बारे में है कि विच relative pronoun और विच पर्टिकुलर relative pronoun कहाँ यूज होता है. एंड द थर्ड टेबल इज अबाउट द एग्जाम्पल सेंटेंसेज. वो एग्जाम्पल्स के सेंटेंसेज हैं. सो हम इसको वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट वी लर्न अबाउट देयर फंक्शन एंड देन वी लुक एट द एग्जाम्पल्स एट द सेम टाइम. द फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज हु. अगर हम इसके यूजेज को देखें तो यूज फॉर पीपल, ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. अब क्या इस्तेमाल होता है? इट इज यूज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ नाउन. नाउ इट्स टाइम टू लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. द लेडी इज हियर हु कॉल्ड यस्टरडे. अब आप देखें ये जो हु है उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है हु कॉल्ड यस्टरडे. तो किसको ये रेफर कर रहा है? हु इज बेसिकली रेफरिंग टू द लेडी. वो लेडी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हु कॉल्ड यस्टरडे. तो हमारे पास वो नाउन भी मौजूद है और हु के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग दैट लेडी और पर्सन. अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस को देखेंगे, ही वॉज अ मैन हु स्टोल अ कार. हु स्टोल अ कार, हु स्टोल अ कार बेसिकली एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. किसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है? इट्स अबाउट अ मैन. ये मैन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ही वॉज अ मैन, ये वो आदमी था. हु स्टोल अ कार, ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. अ सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन इज विच. इसका यूजेज क्या है? इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स. ये चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, और इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द बर्ड्स एज वेल. तो अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ देखेंगे, आई लव द ब्लू कार विच आई सॉ ऑन द रोड. अगर आप ये विच रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहा होगा, उसके बाद है आई सॉ ऑन द रोड. दिस इज बेसिकली एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है. आई सॉ ऑन द रोड, किसको रोड पे देखा गया था? द ब्लू कार. तो द ब्लू कार की एडिशनल इंफॉर्मेशन है आई सॉ ऑन द रोड. तो ये जो विच है ये बेसिकली रेफर कर रहा है और ये रिलेट कर रहा है ब्लू कार के साथ. सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस को देखेंगे, दिस इज द कैट विच वॉज जंपिंग ऑन द सोफा. तो ये जो विच है उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये बेसिकली रेफर कर रहा है कैट की तरफ. तो जिस नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो द कैट है, और आपको पता है इट्स बेसिकली द नेम ऑफ एन एनिमल, और ब्लू कार इज बेसिकली द नेम ऑफ अ थिंग. थर्ड पे अगर आप आएंगे वेयर में, तो वेयर इज यूज फॉर प्लेसेस. ये प्लेसेस के लिए यूज होता है. अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ आए, देयर इज अ मार्केट इन द टाउन वेयर यू कैन बाय एनीथिंग. अब ये जो वेयर है ये बेसिकली रेफर कर रहा है अ मार्केट इन द टाउन को, उसकी तरफ रेफर कर रहा है. और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? वेयर यू कैन बाय एनीथिंग, यानी ये उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है अ मार्केट इन द टाउन की. अगर आप सेकंड एग्जांपल की तरफ देखेंगे, दिस इज द पार्किंग एरिया वेयर आई लॉस्ट माय कीज. तो जो वेयर है ये बेसिकली रेफर कर रहा है पार्किंग एरिया की तरफ, और पार्किंग एरिया की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? वेयर आई लॉस्ट माय कीज, जहां उसने अपनी कीज को लूज किया था, जहां वो गुम हुई थी. हमारे फोर्थ जो है वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका यूजेज क्या है? यूज फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंसेस. फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही इज अ बॉय दैट स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द मैच. ये जो दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ये रेफर कर रहा है किसकी तरफ? और अगर रिलेट कर रहा है किसके साथ? अ बॉय के साथ. और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है? अ स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द मैच. ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ देखेंगे, आई बॉट अ मैगजीन दैट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव. तो ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है और किससे रिलेट कर रहा है? अ मैगजीन के साथ. और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव. सो डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल में आपने देखा होगा कि फर्स्ट दैट वी हैव लर्न दैट वेयर टू यूज दीज रिलेटिव प्रोनाउंस एंड द एडिशन वर्ड, और सेकेंडली हमें ये पता चल रहा होगा कि ये रेफर कैसे करते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं. इनका काम ये होता है, सबसे पहले तो इन्होंने अपने से पहले आने वाले नाउन की तरफ रेफर करना होता है, एंड देन उसके बाद उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी होती है. तो आप ऐसे ही इन सेंटेंसेस को ड्रिल करेंगे
You will look at the sentences with examples and you will also recognize their usage as well, and then we'll move back to the, or we'll return back to the actual table of the book. So dear students, if you look at the table of the book, the things are quite similar to the table that has already been shown to you by me. हमारे पास उसी तरीके से एक टेबल है in which we have who, which, where and that, और उसके आगे हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस है. मैंने ऐसे ही उन नाउन जो नाउन्स हैं जिनको वो रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है. अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ देखेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट द ड्रिल ऑफ द सेंटेंसेस. माई फादर इज समवन हु लाइक्स टू ट्रेवल अब्रोड. तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये रेफर कर रहा है माई फादर की तरफ, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज लाइक्स टू ट्रेवल अब्रोड. सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, आई नो अ पर्सन हु इज गेटिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग. So who is referring to a person and additional information is getting first aid training. Second, जो हमारे पास जो पार्ट है वो which है, which के साथ हमारे दो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं. A compass is a device which tells you about directions. So which relative pronoun is referring to a compass and additional information is tells you about directions. Second sentence, Ali loves his new laptop. अगर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे तो बेसिकली न्यू लैपटॉप जो है ये भी नाउन है और अली भी नाउन है. मैंने दोनों को हाईलाइट किया है. द थिंग दैट यू हैव टू सी और टू ऑब्जर्व इज टू विच नाउन दैट रिलेटिव प्रोनाउन इज रेफरिंग टू. चूंकि विच इज यूज फॉर द थिंग्स और एनिमल्स, तो ये जो है ये अली को रेफर नहीं कर रहा, बेसिकली ये न्यू लैपटॉप को रेफर कर रहा है. ये दोनों नाउन आपके लिए इसलिए हाईलाइट किए थे कि बाद में आपको डिफरेंस को एक्सप्लेन किया जा सके. सो अली लव्स हिज न्यू लैपटॉप विच ही गॉट ऑन हिज एनुअल रिजल्ट. सो दिस रिलेटिव प्रोनाउन विच इज रेफरिंग टू अ न्यू लैपटॉप, और न्यू लैपटॉप की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ही गॉट ऑन हिज एनुअल रिजल्ट. ऐसे ही हमारा जो थर्ड जो है वो वेयर. सो वेयर इज यूज फॉर प्लेसेस. हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ देखेंगे तो थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर बिफोर अस. दिस इज द हाउस वे आई लिव इन माई चाइल्डहुड. तो दिस वेयर इज रेफरिंग टू द हाउस और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आई लिव इन माई चाइल्डहुड. ऐसे ही सेकेंड हमारा सेंटेंस है, देयर इज अ शॉप नियर वेयर यू कैन बाय अ ड्रिंक. तो वेयर इज रेफरिंग टू अ शॉप और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, यू कैन बाय अ ड्रिंक. नेक्स्ट हमारी ऑप्शन दैट है. हैमलेट इज अ प्ले दैट इज रिटन बाय शेक्सपियर. तो हैमलेट जो है प्ले, बेसिकली ये दैट उसकी तरफ रेफर कर रहा है और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इज रिटन बाय शेक्सपियर. सेकेंड सेंटेंस, वी मेट एन एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर से वो दैट वॉज ट्रेवल्ड सहारा डेजर्ट. तो दैट इज रेफरिंग टू एन एक्सप्लोरर और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, हैज ट्रेवल्ड सहारा डेजर्ट्स. So dear students, I hope that after the drill of both the tables, there will be no difficulty for you regarding relative pronouns. Now it's time to give you the homework for today's lesson. So dear students, your homework is exercise A. Complete the sentences use who, which or where. आपने इन sentences को complete करना है by using who, which or where, और आपने देखना है which option is appropriate here. हमने पहले ही इनके यूजेज पढ़े हुए हैं. अगर आपको कहीं डिफिकल्टी होगी तो आप इस टेबल से भी मदद ले सकते हैं. हु इज यूज फॉर पीपल, विच इज यूज फॉर थिंग्स, दैट इज यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स, एंड वेयर इज यूज फॉर प्लेसेस. तो हमने चूंकि यहाँ पे हु, विच और वेयर के साथ सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. I hope that dear students, there will be no difficulty for you regarding this exercise. So exercise A will be your homework for today. It's time to say Allah Hafiz. Assalamu alaikum.